Hello everyone, welcome to the SCA Smart Education. Today we are going to start the chapter number 6 verbs of class 4th subject English grammar. Okay, first we will know what is verb. Verb are the word that shows the action or state of being of a person, animal or thing. Verb वो वर्ड हम वर्ब वो वर्ड होता है जो शो करता है किसी एक्शन को, कोई काम करने वाली चीज़ को जो वर्ड बताता है, जो वर्ड बताता है उसे हम बोलते हैं वर्ब। कोई एक्शन करने वाली चीज़, कोई वर्क करने वाली चीज़ को जो वर्ड हमें बताता है उसे हम बोलते हैं वर्ब। सो नाउ ब्रैकेट में डिफरेंट डिफरेंट वर्ड दिए हुए हैं। इस वर्ड को देखते हुए वी हैव टू कंप्लीट दी एक्सरसाइज। वेंडी इज़ अ गुड पोएट, शी विंस prizes at competitions. Rajat was sick yesterday. We have 2 bookshelves in the study right now. My uncle is a typewriter. He sold it few years ago. My friends say that I am a nice person. We were going to school yesterday when it started raining. Jack and Sue are pianists. My sister loves to listen to them. Danish has a nice toy, but he lost it. Saina were writing a letter to her friend. Her friend wrote to her last time. Hemant have 5 pairs of shoes. He still wants to buy more. Next, now we have already discussed that what is verb. Verb are the word that shows the action or state of being of a person, एनिमल और थिंग। वर्ब वो होता है जो वर्ड हमें कोई एक्शन, कोई वर्क करने वाली चीज़ को जो वर्ड हमें शो करता है उसे हम बोलते हैं वर्ब। यू ऑलरेडी नो दैट देर आर 2 kinds ऑफ वर्ब, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। शीला इज़ अ सिंगर. शीला सिंग्स एट कॉन्सर्ट्स. In the above sentences, is and sing are the main verb. The main verb can show the state of being of the subject. As in sentence 1, it can be shown as action. is और sings जो है ये हमें शो कर रहा है एक्शन, तो इस वाले वर्ड को हम क्या कहेंगे? verb. So exercise A. Underline the helping verb and circle the main verb in these sentences. One has been done for you. जो helping verb होगा उसको हमें अंडरलाइन करना है और जो मेन वर्ब होगा उसे हमें करना है सर्कल। लाइक फर्स्ट वन, यू आर डांसिंग वेल, तो इसमें आर जो है हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब क्या है, जो एक्शन करने वाली चीज़ को बता रहा है वर्ड, वो कौन सा है? डांसिंग। और उसको डांसिंग को कौन सा हेल्प कर रहा है, कौन सा वर्ड हेल्प दे रहा है, वो है आर। तो क्या हो गया? आर जो हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब हो गया डांसिंग। सेकेंड वन, सरफराज एंड हिज मॉम वर रिटर्निंग फ्रॉम द एयरपोर्ट. So वर is the helping verb and returning is the main verb. Ravi is cooking rasito. So is helping verb, cooking is main verb. I called you last afternoon, you were sleeping. Were is helping verb, sleeping is the main verb. The telephone is ringing. Is helping verb, ringing is a main verb. Christina has lost her book on the table. Her is the helping verb, book is the main verb. I have packed all my stuff in the backpack. Have is a helping verb and main verb is the packed. Mother is preparing a dish of egg and spinach. is helping verb, main verb is preparing. देखिए इन सारे सेंटेंस में जो काम करने वाले वर्ड है, जो एक्शन वर्ड है, जो वर्किंग वर्ड, जो वर्क करने वाले वर्ड बता रहे हैं, वो सारे वर्ड हमारे मेन वर्ब है और वो सारे सर्कल है, देख रहे होंगे आप। और उनसे पहले जो वर्ड उनकी हेल्प कर रहा है वो होता है हेल्पिंग वर्ब। Now next exercise, read these sentences then write whether the actions are happening in the present time or they happened in the past time.
बहुत इजी, इस सेंटेंस को हमें रीड करना है। अगर जो हमारा प्रेजेंट टाइम का होगा सेंटेंस उसके आगे प्रेजेंट लिखना है, जो पास्ट टाइम का होगा उसके आगे पास्ट लिखना है। जूनी इज़ मेकिंग अ कप ऑफ टी। और हाँ एक चीज़ और, प्रेजेंट, फॉर प्रेजेंट वी आर यूजिंग इज़ एम आर। प्रेजेंट के लिए हम इज़ एम आर यूज़ करते हैं और पास्ट के लिए वॉज वर ये यूज़ करते हैं। ये ध्यान रखिएगा सब लोग, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं क्लास में। जूनी इज़ मेकिंग अ कप ऑफ टी। सी इन दिस सेंटेंस इज़, इसमें इज़ यूज़ हो रहा है, वॉज नहीं यूज़ हो रहा है, तो ये क्या होगा, प्रेजेंट। सेकेंड, मिस्टर स्टेलाइन was explaining a lesson to his students. Past. Rakhi is distributing toffees in the class. Present. I am helping my friend to solve the sums. Present. Ruhab was wiping the floor because it was dirty. Past. My parents are unpacking the curtains. Present. Next topic is present particle. Now what is a present particle? Present particle always needs helping verb to make a sense. A present particle होता क्या ये पढ़ते हैं। दिव्या is playing in the garden. We were styling our hair last night in the party. The ing form of verb is the present particle. जो ing form यूज़ हो रहा है वर्ब से, वर्ब के बाद जो ing हम यूज़ कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिकल। इन द अबव सेंटेंस प्लेइंग एंड स्टाइलिंग आर द प्रेजेंट पार्टिकल्स। बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा, सिंपल है। जो वर्ब होते हैं, वर्ब वाले वर्ड कौन से होते हैं, जो एक्शन वाले वर्ड होते हैं, जो वर्क करने वाले वर्ड होते हैं, अगर उसके आगे हम ing लगा दे रहे हैं तो वो वर्ड हो जाएगा हमारा प्रेजेंट पार्टिकल। द प्रेजेंट पार्टिकल कम्स आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब इन अ सेंटेंस। जैसा कि मैंने बताया, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही जो है प्रेजेंट पार्टिकल वाला वर्ड हमेशा आएगा। हेल्पिंग वर्ड क्या होता है, इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैड, हैव। इसके बाद जो वर्ड यूज़ हो रहा है वो होगा वर्ब। उस वर्ब में अगर ing लगा दिए तो वो हो जाएगा हमारा प्रेजेंट पार्टिकल। ठीक है। नाउ कम टू दी exercise. Fill in the blanks with the present particle form of the verb given in a bracket. One has been done for you. It is very easy. In a bracket word is given here. You have to change that word in a present particle. तो present particle word को change करने के लिए हमें क्या use करना है? Only we have to use the ing after the given word. जो word रहेगा उसके आगे हमें ing लगाना है तो वो word हमारा automatic change हो जाएगा present particle में। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन, अवनीत इज़ प्रैक्टिसिंग अर्थमेटिक। ब्रैकेट में देखिए क्या दिया हुआ है, प्रैक्टिस। अब इसको अगर हमें प्रेजेंट पार्टिकल में चेंज करना है तो क्या हमें यूज़ करना है, सिर्फ और सिर्फ ing लगा देना है। सो क्या हो गया, प्रैक्टिसिंग। नाउ सेकेंड, वी आर द राजधानी एक्सप्रेस। तो क्या हो जाएगा, वी आर बोर्डिंग द राजधानी एक्सप्रेस। एवरीवन इज द थिएटर बिकॉज द फिल्म इज हॉरिबल। Everyone is leaving the theater because the film is horrible. I am a shower at midnight because it is very hot. I am taking a shower at midnight because it is very hot. The soldiers were the battle last month. The soldiers were fighting the battle last month. The archaeologist was the site around this time last year. The archaeologist was excavating the site around this time last year. सो सबको समझ में आ गया होगा। देखिए ब्रैकेट में वर्ड दिया हुआ है, एक्शन वाले वर्ड, कुछ नहीं करना है, बस इसके आगे हमें ing लगा देना है तो वो वर्ड हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिकल। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द वर्ड वन हैज़ बीन डन फॉर यू। सब्जेक्ट को हमें, सब्जेक्ट आर दी वर्ड दैट टेल्स अबाउट दी नाउन। सब्जेक्ट हमारा वो वर्ड होता है जो नाउन के बारे में बताता है। ठीक है, जो नाउन के बारे में बताता है। और वर्ब सबको पता है, इज़, एम, आर, ठीक है, वॉज, वर, हैड, हैव, ये सारे वर्ड जो होते हैं हमारे वर्ब होते हैं। लाइक फर्स्ट वन, अनीता इज़ अ गुड हॉकी प्लेयर। अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, कौन सा नाउन है इसमें, अनीता। अनीता को हम सर्कल कर देंगे। देन वर्ब कौन सा है, इज़, तो इसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन। लाइक सेकंड, दीना एंड फारा ड्रॉ वेल। दीना एंड सारा सर्कल इट, ड्रॉ
underline. The hive of bees in our garden is full of honey. The hive of bees in our garden, circle it. Is, underline it. A pair of shoes is missing from my room. A pair of shoes, circle it. Is, underline it. Maria wants to join the adventure club. Maria, circle it. Wants, underline it. I have dance classes every Sunday. I, circle it. Have, underline it. Okay, now next topic. Fill in the blanks with the verb that agree with the subject in the sentence. ये भी बहुत ईजी है. सब्जेक्ट इसमें सबसे पहले दे दिया गया है. अब सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब लगाना है और ब्रैकेट में 2 वर्ड दिए हुए हैं. जो राइट वर्ब होगा उसको हमें सेंटेंस में लिखना है. द क्राउड वॉज आस्क्ड टू मूव आउट ऑफ द पार्क. द सीजर्स दैट यू बॉट yesterday आर डैमेज्ड. The flock of birds we saw yesterday have flown away. Gauri and Gautam are keen to play tennis. The tap water is quite cold here. Do you want an ice cream? Okay. Now come to the next exercise. Correct the error in these sentences and rewrite them. What do you mean by error? Error मतलब क्या होता है? मिस्टेक. कोई गलती से कोई मिस्टेक हो जाती है उसको हम बोलते हैं एरर. तो इस सेंटेंस ऊपर देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें कई जगह पे मिस्टेक हो चुकी है, एरर हो चुकी है. तो उस एरर को हमें अंडरलाइन करना है और उसकी जगह जो सही वर्ड होगा वो हमें लिख के पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है. ठीक है. यू इज़ काइंड एंड जनरस. तो इज़ जो है मिस्टेक है, एरर है, अंडरलाइन कर दीजिए उसको और इसकी जगह लिखेंगे हम आर. यू आर काइंड एंड जनरस. आई वर टायर्ड आफ्टर प्लेइंग ऑल इवनिंग. आई के बाद वर नहीं लगेगा, वर गलत है तो वर को आप क्या करेंगे? अंडरलाइन. वर की जगह हम क्या लिखेंगे? एम. आई एम टायर्ड आफ्टर प्लेइंग ऑल इवनिंग. ही हैव मैनी बुक्स. हैव जो है रॉन्ग है, एरर है, हैव को अंडरलाइन करिए. हैव की जगह लिखेंगे हम हैज़. ही हैज़ मैनी बुक्स. शी आर इंटेलिजेंट. कभी आप शी आर इंटेलिजेंट सुने? नहीं. तो आर क्या है? रॉन्ग है, मिस्टेक है, तो उसकी जगह क्या हो जाएगा? शी इज़ इंटेलिजेंट. वी हैज़ फिनिश्ड आवर वर्क. वी के साथ कभी हैज़ नहीं यूज़ होता है, हैज़ सिंगुलर के लिए यूज़ होता है. ठीक है. तो वी मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं, प्लूरल है, तो इसके साथ हमें क्या यूज़ करना है? हैव. वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क. दे वॉज टाइडिंग द क्लासरूम. अब दे है, इसमें भी देखिए दे मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं, तो एक से ज़्यादा है, पर यहाँ पे क्या लिखा है? वॉज. वॉज किसके लिए यूज़ होता है? सिंगुलर के लिए. प्लूरल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वर. दे वर टाइडिंग द क्लासरूम. Now come to the next one. Fill in the blanks with the verb is, are, as, have. तो हमें is, are, has, have को यूज़ करते हुए इस fill in the blanks को कंप्लीट करना है. Blackie's litter of pups is for sale. The salt is falling out of the bag. Gilbert and Jenny are ready to leave. These art classes are very interesting. The army of monkeys are heading for the forest. These houses have thick walls. 200 rupees is all that I can give you. My parents are not in town today. So come to the next exercise. नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है? रीड दिस कॉन्वर्जेशन बिटवीन पल्लवी एंड हर मॉम. पल्लवी और उसकी मम्मी के बीच में जो है आपस में दोनों में कॉन्वर्जेशन हो रहा है, मतलब दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं. देयर आर सम मिस्टेक इन द सेंटेंस. इस सेंटेंस में कई जगह मिस्टेक है, एरर है. फाइंड देम एंड री राइट द कॉन्वर्जेशन करेक्टली इन द स्पेस गिवन बिलो. दिस इज़ वेरी ईजी एंड दिस इज़ योर होमवर्क. आपको क्या करना है? इस सेंटेंस को पढ़िए जहाँ पे आपको गलती लग रहा है. जैसे हम यहाँ पे देखिए एरर वाला था,
जैसे ये देखिए, इसमें एरर दिया हो तो उसको हम नीचे अंडरलाइन, तो उसकी जगह जो सही वर्ड है वो हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। वैसे ही हम इसमें भी क्या करेंगे, जो गलत वर्ड है उसको अंडरलाइन करेंगे और नीचे उसकी जगह क्या होना चाहिए वो वर्ड लिखते हुए पूरा सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। मैंने अंडरलाइन कर दिया है जो जो गलत वर्ड है, और इसकी जगह जो सही वर्ड है वो आपको करते हुए इस पूरे सेंटेंस को फिर से इस फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। अगर नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके, बट फर्स्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। Now next topic, choose the verbs from the bracket that match the subject and fill in the blanks. ब्रैकेट में वर्ब दिया हुआ है, उस वर्ब जो सही वर्ब होगा फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। आई एम ट्रैवलिंग दिस विंटर बट मॉम एंड डैड आर स्टेइंग बैक। इंडिया हैज़ मैनी स्टेट्स। Namrata and her brother visits their grandfather every year. Ayub wants to attend a theatre workshop. The film was running at the multiplex for some time, but I missed it. The flour in the bowl are not enough to bake a 2-pound cake. Now come to the next. These scissors are of no use. You are doubting me yesterday. Now you know what the truth is. Now come to the next exercise, comprehension. Comprehension क्या होता है, एक स्टोरी, एक पैसेज आपको दे दिया जाएगा, उस पैसेज में फिर नीचे आपको क्वेश्चन आंसर देंगे, ठीक है। उस पैसेज में से क्वेश्चन आंसर आपको फाइंड आउट करना है। जैसे कि मैंने आपको ये एग्ज़ाम में पहले दे चुका हूँ मैं आपको, कि एक पैसेज दे दिया जाएगा और नीचे क्वेश्चन आंसर दे दिया जाएगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको उस पैसेज में से फाइंड आउट करना है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू रीड दिस पैसेज। सब लोग इस पैसेज को रीड कर लीजिएगा, फिर इस एक्सरसाइज को करिएगा। जैसे कि मैं आपको ये एक्सरसाइज डिस्कस हम लोग करते हैं अभी, लेकिन आप लोग यू हैव टू रीड द पैसेज। Choose the correct option. The writer went to a day school or boarding school. The right answer is boarding school. The housemaster wished to discipline the children or trouble the children. Discipline the children. Mr. Harold found watching television a useful activity or useless activity. The right answer is useless activity. नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर आपको इस पैसेज में से फाइंड आउट करना है और फिर यहाँ पे आपको लिखना है। ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट कंप्लीट योर वर्क एंड अटैच योर PDF in the SCA app. Thank you.